हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। ठीक है। और आई रियली विश कि आप सभी अपना अपने माता पिता का, घर में छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और येस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर कमिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। So, Bacho, now I guess it's enough time. We have been dealing with each other, and you guys now know me that the purpose of every video which we are creating in this Vedantu Olympiad School is to bring the gold in our country. Okay? So, I welcome all of you, and today, students, you will actually like this session because today I have bring some awesome, cute, simple, crisp, but unique questions on laws of motion. So, okay. So, students, today we will talk about few questions on laws of motion, and the questions are really unique and they are very, you can say, crisp questions, but very interesting. Okay. So, the answers will be one liner, but they will teach us so many things. Okay. So, let's start our session today. So, laws of motion में कुछ अच्छे अच्छे सवाल आज सीखेंगे, but before that, I guess all of you might be knowing like why we are here. Like we all know that we are here for Olympiad preparation, and my name is Vinay Kumar Shure. We are here for our physics Olympiad, in which we have NSEP batch and we have our INPHO batches. Okay. So for class 11 guys, what kind of batches like which we do, because in every video there are new students, so I will quickly recap it. We have JEE, we have Olympiads, we have KVPY. So इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जाएगी that all the main exams of the country they get catered, and we usually solve Erodov and Pathfinder. Okay, so in our NSEP batches we solve these books and selected questions of these books, but in our INPHO batch we thoroughly solve these books. Okay, completely end to end. So that depends upon the student, like if you have that appetite and if you have that comfort zone to do these kind of questions, then you are welcome to our Vedantu Olympiad School. Okay, and guys, like we also do some INPHO, IPHO, USA questions है ना, USA फिजिक्स ओलंपियाड, दूसरे देशों के सवाल भी करते हैं, है ना, आप सब जानते ही हैं। तो मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, कि आपको हम वीक में 30 से 35 प्रॉब्लम्स देंगे, जिसका वीकली लोड होगा 5 से 6 घंटे. ओके, इट विल बी नॉट मोर देन 5 to 6 hours. You can put us a mail if you want to come to our courses. Like this is the mail physics.vos@gmail.com. So like if you have some qualifications, like if you are NACGS qualified, NACGS qualified अगर आप हैं, अगर आप NTSC qualified हैं, और इफ़ यू हैव एनी SOF ओलंपियाड्स और एनी अदर अचीवमेंट, ओके, कोई और अगर आपके ओलंपियाड्स हैं, कोई और अचीवमेंट है, और एक कोई अचीवमेंट अगर नहीं है, एंड इफ यू आर वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर दिस वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, देन एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो आई गिव यू क्वेश्चंस. What you need to do, you need to write a subjective solution of them and you need to upload those to that email ID. Okay, so आपको इस email ID पे अपना solution भेजना है with our contact number, and we will reach you and we will contact you if we feel that there is a right connection. Okay, and similarly guys, I hope सब जानते ही हैं, ठीक है, I will not repeat much. We have INPHO batch, same kind of things for +2. Okay, so the only changes are the concepts are same, the books are same, the content is same. The only changes are we give less problems. Okay, the reason is simple, because the +2 candidates are very much occupied in their normal preparation. So what I wanted to tell you that we will add your knowledge, we will not repeat the same things. So this kind of workload is required 4 to 5 hours per week. So your normal, if you are studying into a different institute, आपकी normal preparation भी hamper नहीं होगी, और आप इसके साथ कुछ और चीज़ें भी अपनी लेके आ सकते हैं, ठीक है, आप एडिशंस कर सकते हैं. एंड सेम ID physics.vos@gmail.com. तो क्लास नंबर लिख दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, और हमें कुछ सॉल्यूशंस और कोई अचीवमेंट्स आपकी हैं तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है. तो आइए, बाकी आप बेटा सवाल शुरू करते हैं. आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. तो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे सवाल हैं बच्चों. देखिए क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़िए. कह रहा है ए लॉन्ग थिन रबर. क्वेश्चंस आज सारे जो क्लास के होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, सारे क्रिस्प होंगे, एक लाइन के होंगे. बट आज मैंने जो चूज किए क्वेश्चंस ऐसे चूज किए हैं कि सारे बस एक लाइन लिखते ही सॉल्व करने वाले होंगे, बट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ वाले होंगे, ठीक है. तो आपको बहुत मजा आएगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा. कह रहे लॉन्ग थिन रबर कॉर्ड ओबेइंग हुक्स लॉ इज सो वीक दैट इट स्ट्रेचेस कंसिडरेबली इवन अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है. ये एक हुक्स लॉ होता है इलास्टिसिटी में, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, ठीक है. नहीं तो मुझे कोई ऐसा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में.
सो ड्यू टू इट्स ओन वेट, लाइक अगर मैं एक रोप को, है ना, अपने वेट से एलोंगेट कर दूं, अपने वेट से सस्पेंड कर दूं, तो उसके अंदर एक एलोंगेशन आएगी, देयर इज सम एलोंगेशन, ओके। इन वन केस द कॉर्ड इज हेल्ड बाय वन ऑफ इट्स एंड्स एंड हंग वर्टिकली। तो एक केस में आप देख सकते हैं, दिस इज केस ए, जिसमें आपका उसको एक हमने वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, एंड इन अनदर केस बोथ ऑफ ends आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द नेल। सो दूसरे केस में आपने उसको दो हिस्सों में पकड़ दिया। तो बच्चों बेसिकली आपके दो केसेस हैं, एक केस में आपने रोप को वर्टिकली हंग कर दिया, एंड सेकंड केस में आपने एक नेकलेस की तरह उसको ऐसे दो एंड से पकड़ के होल्ड कर दिया, एंड देयर इज अ सिमेट्री 45 डिग्री विद द एंगल आप हॉरिजॉन्टल से देख रहे हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, एक लाइन क्वेश्चन है ना, ए एंड बी एट द सेम लेवल, सेम डिस्टेंस अपार्ट, है ना, सेम शेप, ये जो शेप है ये आपके सामने है। सो द क्वेश्चन इज विच केस इज द कॉर्ड स्ट्रेच्ड लॉन्गर। सो द क्वेश्चन इज इन विच केस द कॉर्ड स्ट्रेच लॉन्गर। इसमें ज्यादा एलोंगेशन आएगी, दिस इज केस बी, ओके, दिस इज केस ए। तो क्वेश्चन इज किसके अंदर एलोंगेशन ज्यादा होगी, ठीक है। मैं आपको बस एक हल्का सा हिंट दे सकता हूं, मोर टेंशन, हुक्स लॉ थोड़ा सा आपको आइडिया तो होगा और थोड़ी फीलिंग भी आती होगी, जितना तनाव ज्यादा होगा, आई गेस कॉमन सेंस भी है, एंड हुक्स लॉ बेसिकली एक्सप्लेन दिस थिंग मैथमेटिकली, है ना, हुक्स लॉ इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। आई विल नॉट go to the exact law. What I wanted just to give me an answer with a common sense. More tension means more elongation. ठीक है. So, okay. Thought दीजिए, वीडियो को पॉज करें. I guess पॉज की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो हो जाएगा. बट स्टिल इफ यू वांट थोड़ा टाइम चाहिए आपको, तो आप एक बार पॉज करिए और सोचिए कि इसके अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है. ठीक है. हाँ जी बच्चों, आई होप आपने अपना थॉट दिया है. तो बहुत प्यारा सॉल्यूशन है इसका. सॉल्यूशन क्या है, एक केस में आपका जो रोप है बच्चों, आपने वर्टिकली सस्पेंड किया है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. मैं बस आपसे ये पूछूंगा कुछ एक दो सवाल, और एक केस हम ये ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना. ये आप यहां से समथिंग लाइक दिस. मैं बस आपसे बेटा एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, बस आप मुझे बताते जाएं. और उस केस में आपको बहुत बच्चों ने तो कर भी लिया होगा. यहाँ पे जो टेंशन है वो आई गेस सबसे मिनिमम होगी, और आई गेस आप सब जानते होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी. और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी आई गेस वो सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज मैक्सिमम. और उसके नीचे जो पूरा वेट आपका लग रहा है नीचे, mg, आई गेस इस पॉइंट के नीचे पूरा वेट आपका लग रहा है, जो टेंशन होगी वो होगी मैक्सिमम, दैट इज mg. एंड आई गेस आप सभी जानते हैं आप का टेंशन यहाँ से यहाँ जो है वो लीनियर वेरी करता है. तो टेंशन जो होगा बेसिकली आपका टेंशन इंक्रीज हो रहा है ऊपर, द टेंशन इज इंक्रीजिंग. ठीक है. अगर मैं बेटा यहाँ की बात करूँ, एक बार आप टेंशन निकाल लो, है ना. अगर मैं यहाँ की बात करूँ बेटा, तो आई गेस बहुत लॉजिकल यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी. यहाँ पे जो टेंशन आएगी सिमेट्री से वो T आएगी, इधर भी जो टेंशन आएगी वो T आएगी, और आपका यहाँ से जो एंगल आएगा वो आएगा बेटा 45 डिग्री, और यहाँ से भी जो एंगल आएगा दैट इज 45 डिग्री. और इसके अलावा आपका जो वेट आएगा वो mg आएगा. ठीक है. तो आप बच्चों बहुत सिंपल से, जहाँ से आपने उसको पकड़ा है वहाँ पे आपका FBD अगर आप बनाए, तो टेंशन जो जाएगी वो एंगल पे जाएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंड ग्रेविटी जो लगेगी वो आपकी नीचे की तरफ लगेगी. ठीक है. तो बच्चों आप अगर देखें ध्यान से, बड़ा अमेजिंग सा काम हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे टेंशन को तोड़ दूं, ये कंपोनेंट आ जाएगा T/√2 T cos 45, और एक ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा T/√2. ऐसे ही एक कंपोनेंट बेटा आपका ये आ जाएगा T/√2, और एक कंपोनेंट बेटा आपका ऊपर आ जाएगा T/√2. तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, 2 टाइम्स T/√2 जो है ना, वो mg के बराबर है. ठीक है. 2 टाइम्स T/√2 जो है वो mg के बराबर है. तो टेंशन बच्चों कम्स आउट टू बी mg/√2. टेंशन का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है ऊपर टॉप पॉइंट पे, दैट इज mg/√2. ठीक है ना. यहां से आपका T/√2 इससे कट जाएगा, और यहाँ पे आपका T/√2 और T/√2 आपका टॉप पे जा रहा है. मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, और पूरा जो वेट नीचे लग रहा है वो आपका mg लग रहा है. तो टॉप पॉइंट पे जो बेटा टेंशन आपकी निकल के आएगी
दैट इज नथिंग, दैट इज mg बाय रूट टू। ठीक है, तो 2 टाइम्स इसका डबल t बाय रूट टू का डबल जो आपका है वो mg के बराबर है। तो ये आपका रूट टू से रूट टू आ जाएगा और ये रूट टू अगर नीचे आ जाएगा तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg बाय रूट टू। ठीक है, तो बच्चों यहां पे टेंशन आपकी इनफैक्ट टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम है। मैं यहां बना देता हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंशन। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो मैक्सिमम टेंशन वाला पॉइंट है, और जो ये वाला बेटा पॉइंट है इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम टेंशन। ठीक है, और मुझे ये मिनिमम टेंशन की भी वैल्यू निकालनी है। मैंने मैक्सिमम तो निकाल ली इस केस में, तो मिनिमम टेंशन भी बेटा अगर आपको निकालनी है वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इतना हिस्सा जो आधा हिस्सा है आप उसका एफबीडी बना लीजिए अलग से, आप मिनिमम टेंशन भी निकाल लीजिए, फिर हम कंपेयर कर लेते हैं क्या हो रहा है दोनों में। ठीक है, समझदार बच्चा तो वैसे ओरली भी कर चुका होगा जहां तक मुझे लगता है अभी तक। टी बाय रूट टू बेटा यहाँ पे आया टेंशन, टी बाय रूट टू बेटा आपका टेंशन यहाँ पे आया। ठीक है, और आधा वेट यहाँ लग रहा है बेटा, तो बेसिकली दिस इज m बाय टू जी, है ना। आधा वेट आपका यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे जो बेटा आपकी टेंशन लग रही है सेंटर पे दैट इज टी नॉट, आप उसे टी नॉट कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात बिल्कुल साफ साफ आपकी दिख रही है कि एक्स वाली जो फोर्स है वो आपकी कट जाएगी। ठीक है, एफबीडी अगर आप बनाएंगे तो टी नॉट इज नथिंग, इट इज टी बाय रूट टू, और टी की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, mg अपॉन रूट टू बाय रूट टू, सो दैट इज mg बाय टू। ठीक है, तो यहां पे जो बेटा टेंशन आ रही है मिनिमम टेंशन दैट इज mg बाय टू। बट अभी भी कहीं से हमें ये नहीं पता लगा, ये केस ए है ये केस बी है, किस केस में एलोंगेशन ज्यादा होगी। ए में एलोंगेशन ज्यादा होगी, हाँ जी, के बी में एलोंगेशन ज्यादा होगी। क्वेश्चन जो था वो एलोंगेशन का था। तो मैं फिर आपको कहूंगा आप क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, हम काफी क्लोज आ चुके हैं। क्या हमें आंसर दिख रहा है कि एक लाइन का ही आंसर है वैसे तो, यस। सो मोर एलोंगेशन जिसमें होगी, हाँ जी आप समझ पा रहे हैं, ज्यादा एलोंगेशन जो होगी वो केस बी में होगी। केस बी, दिस विल हैव मोर एलोंगेशन। Now what is the reason? The reason is pretty simple and pretty logical. ठीक है, थॉट दे लीजिए अपना एक बार। आप देखिए यहां पे बेटा मिनिमम टेंशन 0 है, यहां मैक्सिमम टेंशन mg है। आई कैन राइट गाइस एवरेज टेंशन इन केस ए, तो एवरेज जो होगा वो हाफ होगा टेंशन का। आप ठीक है, एवरेज टेंशन आप देख लीजिए, उसके अंदर जो एवरेज टेंशन आएगा, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज mg, सो एवरेज टेंशन जो उस रोप के अंदर आएगी आप ऐसे समझ लीजिए एवरेज टेंशन विल बी दी हाफ, दैट इज 0 प्लस mg बाय 2, mg बाय 2। तो गाइस जो एवरेज टेंशन है यहां पे पूरी रोप में दैट इज द मिनिमम टेंशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इन बी। तो आप ये लगा लीजिए इसके अंदर आप अगर टेंशन को कांस्टेंट कर दें, ऐसे समझने के तरीका कि अगर आप उस पूरे रोप में टेंशन कांस्टेंट मान लें, एवरेज ले लीजिए आप कितना mg बाय 2, तो बेटा यहां पे जो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे mg बाय 2 है, आगे तो टेंशन mg बाय 2 पूरी रोप में बढ़ेगी, देयर इज एन इंक्रीज इन टेंशन, और सेम आपका टेंशन यहां पे बढ़ेगा। तो ओवरऑल यू कैन से टेंशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है तो उसके अंदर एलोंगेशन ज्यादा होगी। तो मोर एलोंगेशन जो होगी, ज्यादा एलोंगेशन जो आएगी वो आपके सेकंड वाले पार्ट में आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप सभी को समझ में आया होगा, और बहुत प्यारा सिंपल एक लाइन का सवाल है हमारा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। सवाल आपका एक होमवर्क है, आप सोच के आइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगले में रिकॉर्ड ही कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ रोप, मास m एंड लेंथ l, एंड हमने इस रोप को यहाँ से फिक्स किया हुआ है, और लेट्स से जो हमारा टर्मिनेटिंग एंगल है, द टर्मिनेटिंग एंगल इज अल्फा। यहाँ पे भी द टर्मिनेटिंग एंगल ऑफ द रोप इज अल्फा, एंड द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। द क्वेश्चन इज फाइंड the equation of shape of rope। तो जो केस बी था बेसिकली आपका, उसमें जो रोप आपकी बनी हुई है आपको उसका इक्वेशन लिखना है।
ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सवाल दे रहे हैं तो फिर आप मुझसे पूछेंगे सर हमें करना क्या है। आपको एक ही काम करना है, आपको physics.vos@gmail.com पे अपना सॉल्यूशन लिख के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करके अपलोड करके हमें भेजना है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल सवाल हैं, बड़े अच्छे अच्छे, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। कह रहा है ए रॉड ऑफ मास m इज हैंगिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, यहाँ कॉमा आएगा। सो गाइस वी हैव अ रॉड, आपका एक रॉड का मास m है, लेंथ l है, और आपने इस रॉड को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे लगा दिया। ठीक है, सो आपसे पूछा कि टेंशन फोर्स इन द रॉड, तो इस रॉड के अंदर जो टेंशन फोर्स आएगा, मतलब रॉड के अंदर जो तनाव आएगा वो कैसा होगा। मतलब कहने का मतलब वो रॉड के अलोंग होगा। मैं अगर आपको कुछ ऑप्शंस दे दूं, लेट्स से अलोंग द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड, और रॉड के साथ एंगल पे आएगा। तीन अगर आपको मैं ऑप्शंस देता हूं, अलोंग द रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड एट एन एंगल टू द रॉड, तो आप अपना आंसर क्या मार्क करेंगे। बस आपको इतना बताना और कुछ नहीं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो आप सब जानते हैं, दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग होती है एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। रॉड के अंदर जो टेंशन है वो कैसी होगी। बहुत प्यारा एक लाइन का सवाल है। पॉज कर लीजिए वीडियो, एक बार सोच लीजिए एंड देन वी कैन डिस्कस। बहुत बच्चों ने कर ही लिया होगा आई गेस। सर कुछ ना करें, अगर हम इतने हिस्से का एफबीडी बना दें, ओनली दिस, तो इतने हिस्से का जो वेट नीचे लग रहा है वो लग रहा है कुछ वेट होगा इसका, लेट्स से नॉट कैपिटल एम, इट्स सम वेट, है ना, कुछ वेट होगा नीचे की तरफ mg। और बेटा बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये रॉड आपकी रेस्ट पे है, रेस्ट से हमने इस रॉड को एंगल पे ले जाके छोड़ दिया, है ना, हमने होल्ड करके रखा है, आप ऐसे समझ लीजिए, छोड़ा नहीं है एग्जैक्टली, है ना, हमने होल्ड करके अगर रखा है उसको वहां पे, तो बहुत सीधी सी बात है, ये जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट भी रेस्ट पे होगा। तो बेसिकली ये रेस्ट पे तभी होगा अगर यहाँ पे जो टेंशन मिल रही होगी वो वर्टिकल मिल रही होगी। तो टेंशन mg को काटेगा, कहीं से भी कट कर दें आप, यहां से कट कर दें, यहां से कट कर दें, तो जो भी पोर्शन होगा उसको टेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर रही होगी। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज एन एंगल थीटा। ठीक है, तो आप देखिए रॉड के किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी एट एन एंगल थीटा। तो जो टेंशन होगी उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। सो द आंसर इज दैट टेंशन विल बी एट एन एंगल टू द रॉड। टेंशन रॉड के साथ एक एंगल पे आएगी, तो एक कंपोनेंट आपका आएगा टी कॉस थीटा, दैट इज टी पैरेलल टू द रॉड, और एक कंपोनेंट आपका आएगा बेटा टी परपेंडिकुलर, दैट इज नॉट दिस वन। मैं इसे एक बार रब कर देता हूं, एक सेकेंड, यस, एक कंपोनेंट आपका आएगा परपेंडिकुलर, दैट इज टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा भी आपका आएगा और टी कॉस थीटा भी आपका कंपोनेंट निकल के आएगा। सो बेसिकली टेंशन विल बी एट एन एंगल टू दी रॉड। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सिंपल से माइन्यूट से कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। आई प्रॉमिस यू व्हाट एवर क्वेश्चंस व्हिच वी विल डिस्कस हियर, है ना, दे विल एनहांस योर नॉलेज, दे विल गिव यू मोर क्लैरिटी। ठीक है, चलिए एक सवाल और बहुत प्यारा सा है अपने पास, आप लोगों से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। आई गेस दिस इज एन इजी राइड, कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ जी, सो गाइस देयर आर टू ब्लॉक्स A and B एंड दे ईच ऑफ मास m, दोनों का जो मास है m है, दे आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F and 2F आर अप्लाइड ऑन द टू ब्लॉक्स A and B। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक्स हैं A and B, एक तरफ F लग रहा है, एक तरफ से आपका 2F लग रहा है। ठीक है, द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब दे आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। सो इन ब्लॉक्स के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। थॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, वन लाइनर है, आज पहला वीडियो है लॉज ऑफ मोशन का, तो आपके लिए थोड़े से नए और थोड़े से कंफर्टेबल क्वेश्चंस रखे हैं।
ठीक है, थॉट दे लीजिए, आई गेस दे दिया है बच्चों। हाँ, इट्स एक्चुअली प्रीवियस ईयर एनएसईपी प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी देना चाह रहा था, ये पुराने साल का प्रीवियस ईयर एनएसईपी सवाल है। ठीक है, तो बच्चों आई गेस सबसे स्पीडी वे आपने बहुतों ने कर भी लिया होगा, जो आपका बनता है कि लाइक दिस इज अ सिस्टम, ये आपका सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम आप देखें, इस तरफ फोर्स एफ है, उस तरफ 2F है, तो ये पूरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा और उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेट फोर्स बाय मास। तो 2F में से अगर आप F निकाल दो, दैट इज द नेट फोर्स बाय मास, मास ऑफ द सिस्टम इज 2M। सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बेटा जो निकल के आएगी दैट इज सिंपली, आपका क्वेश्चन एक्चुअली यहीं पे खत्म हो गया अगर आप इसको ओरल करेंगे ना। सो दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू F बाय M, सॉरी F अपॉन 2M, दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको पता है। अब मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो सरफेस है आपका, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ए को, और ब्लॉक बी को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ब्लॉक ए पे फोकस करें, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहां पे अलग से डायग्राम बना लें, हाँ जी, मास एम है और ये पीछे की तरफ आपका एक्सेलरेट कर रहा है और इस तरफ जो आपकी फोर्स लग रही है बेटा वो एफ है। तो अगर आप थोड़ा सा बेटा अपना ध्यान दे दें यहाँ पे, तो आप देखिए ये एंगल आपका कितना आएगा 30 और ये 90 है, तो मतलब ये जो एंगल आपका आएगा ये आएगा 60। तो n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा n cos 60, दैट इज n/2, और वर्टिकल आएगा n sin 60, दैट इज √3/2n। और इसके अलावा जो नीचे वेट आएगा वो आएगा mg, और ग्राउंड से जो नॉर्मल आएगा वो आएगा n'। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल काम तो अब रहा नहीं। आपके लिए बस सवाल इतना है, मैं यहाँ पे जरा लाइन लगा देता हूँ। हाँ जी, तो सवाल बस बेसिकली इतना है बेटा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में व्हाट इज द नेट फोर्स, दैट इज n/2 माइनस f, दैट इज द नेट फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू मास m इनटू गाइस एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी F/2m। ठीक है, सो यू कैन सी द एक्सेलरेशन दैट इज F/2m, एंड यू कैन सी बेटा m से m आपका कट गया, सो n/2 इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी f, हाँ जी, प्लस F/2 आपका यहाँ बन जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी गाइस 3f/2, तो 2 से 2 कट जाएगा गाइस, सो द नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 3f। सो नॉर्मल रिएक्शन जो निकल के आएगा अपना इनके बीच का, वो 3 गुना निकल के आएगा फोर्स का, दैट इज 3f। तो आप इधर से f लगा रहे हैं, उधर से 2f लगा रहे हैं, सो द नॉर्मल रिएक्शन विल बी 3f। सिंपल इजी प्रीवियस ईयर एनएसईपी क्वेश्चन। आई थॉट कि ठीक है, आपको हर बार आईएनपीएचओ करवा रहे हैं, थोड़ा सा आपको एनएसईपी का भी पता लगना चाहिए कि एनएसईपी मुश्किल नहीं है, एनएसईपी बस कवरेज है। अगर आपकी कवरेज अच्छी होगी तो आप हर तरह का सवाल एनएसईपी में। स्टेज 1 तो बच्चों देखो, मेरा ये मानना है स्टेज 1 तो इंडिया का हर बच्चा निकाल सकता है, स्टेज 1 में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस आपके सामने है, देखिए आप। चलिए जाने से पहले एक सवाल और करेंगे। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, आई रियली लव दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन इस कह रहा है, रॉड इज इंसर्टेड बिटवीन द टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी, प्लेस्ड ओवर अ रफ सरफेस एज शोन इन फिगर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, और उन 2 ब्लॉक्स के बीच में आपने एक ये रॉड है, बेसिकली 2 ब्लॉक्स पास पास लिए और उनके बीच में आपने एक रॉड को डाल दिया। ठीक है, एंड क्लोज इनफ टू कीप द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। और उसके बाद डालने के बाद आपने बेटा यहाँ पे टॉप पॉइंट पे एक फोर्स F लगाया on the upper end of the rod as shown in figure, and the question is simple, the force is gradually increased। आप slowly फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, आपको अगर थोड़ी बहुत फील आ रही है बेटा, ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये जो ब्लॉक है ये आगे जाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव फर्स्ट। बहुत प्यारा सवाल है, इनमें से पहले कौन चलेगा? A पहले चलेगा, B पहले चलेगा, they will move simultaneously। Now what is that? The exact theory, just one liner, not a big deal at all। मुश्किल है ही नहीं, है ही नहीं बच्चों, मेरी बात को समझ लीजिए आप, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
थॉट दीजिए, पॉज करिए वीडियो को, देखिए जरा क्या होगा इसके अंदर। दे लिया? चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत बच्चों को लगता है दे विल मूव साइमल्टेनियसली, एक बच्चों को ऐसा लगता है कि इकट्ठे चलेंगे। लेट मी टेल यू, इकट्ठे नहीं चलेंगे, ठीक है। अब पहले कौन चलेगा, आइए देखते हैं। बच्चों इस बात को समझो कि जब आपने इस ब्लॉक की बात की, मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, एक ये ब्लॉक है, बस इतने में ही आपका आंसर निकल आएगा। एक ये ब्लॉक है और एक आपकी ये बेटा रॉड है, देयर इज अ रॉड, ठीक है। आपने इस रॉड के टॉप पॉइंट पे बच्चों एक फोर्स लगाया F, ठीक है। इस पॉइंट फोर्स लगाने की वजह से ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट विल अप्लाई अ नॉर्मल N1 और Na, आप Na ले लो ऑन दिस इन दिस ब्लॉक। तो इन रिटर्न इस पॉइंट पे Na रॉड पे वापस लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन। सो ये जो पॉइंट है, ये इसको, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये A पे ना थोड़ा फील करने की कोशिश करो, वो जो रॉड है वो बेंड होने की कोशिश करेगी, तो उस पॉइंट को वो आगे से धक्का मारेगी, और जो ये वाला पॉइंट है आपका, दिस वन, दैट विल प्रेस द अदर ब्लॉक, एंड दिस पॉइंट विल हैव अ टेंडेंसी, थोड़ा सा अगर आप उसे एंगल पे विजुलाइज करें, ये इस पॉइंट पे, इस पे नॉर्मल लगेगा आगे की तरफ NB, और वापस इस पे जो नॉर्मल लगेगा इस पॉइंट पे, वो लगेगा NB इन रिटर्न, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, एंड गाइस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, डन। मैं फिर आपको बोलूंगा, क्या आप अभी सोच सकते हैं पहले कौन चलेगा? फिर थॉट दे लीजिए। यस, तो अगर आप थोड़ा सा बेटा और ध्यान दें, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? फॉरवर्ड फोर्स है आपकी F, आगे की तरफ F है प्लस Na, एंड व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स? दैट इज NB। गाइस आई कैन इक्वेट द नेट फोर्स ऑन द रॉड इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज जस्ट अभी रॉड चलनी स्टार्ट हुई है, इट इज नियरली इक्वल टू 0। अगर हम मान के चलें कि अभी रॉड मूव नहीं की, हल्की सी हिली है, जस्ट अभी हिली है, तो आप जस्ट उस मूवमेंट की बात जानना चाह रहे हैं कि पहले कौन चलेगा, तो मैंने जस्ट अभी रॉड आपकी हिली है। सो नेट फोर्स अगर रॉड पे 0 करें तो बात बहुत सीधी सी है, NB इज F प्लस Na। तो मेरे ख्याल से बच्चों गेम क्लियर हो गई है कि NB Na से बड़ा है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, है ना। अगर आप देखें यहाँ पे NB पीछे है, Na आगे है, F आगे है, तो जितना आगे है F प्लस Na उतना पीछे है, तो अगर आप F की वैल्यू निकालें दैट इज NB माइनस Na। और यार ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पक्का ही है कि फोर्स जो है वो नॉन जीरो है, तो अगर ये फोर्स आपकी पॉजिटिव है तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई गेस गेम आपकी सेट है कि NB Na से बड़ा होगा, यानी कि जब A 0 होगा, Na 0 होगा, NB जो होगा वो नॉन जीरो होगा, वो उससे बड़ा होगा। सो दिस विल कम फर्स्ट। अगर वो बड़ा है, मेरी बात को समझिए, अगर Na 0 होगा तो NB उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो बेसिकली दिस विल कम फर्स्ट। सो ब्लॉक B, है ना, मैं लिख देता हूं पूरा, ब्लॉक B मूव्स फर्स्ट। देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के बिल्कुल यूनिक फ्रेश क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, वेदांत ओलंपियड स्कूल में आपको मिलेंगे, ठीक है। बस बच्चों इसी तरह की क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस जो आपको एक अलग टेंजेंट पे सचवाएं, मुश्किल नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी करेंगे, बट साथ ही साथ कुछ ऐसे प्यारे क्रिस्प क्वेश्चंस इस चैप्टर में बेटा बहुत सारे आएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। मैं आपको लोगों के लिए लाता रहूंगा और कुछ नए सवालों के साथ आपके अगली वीडियो में मिलूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर क्लास में मैं लेके आऊंगा। ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितना लंबा दिख रहा है आप थॉट देंगे, आप बहुत आराम से इसे कर पाएंगे। तो आज की क्लास की जो फीलिंग है, उस फीलिंग के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और क्या सॉल्यूशन भेजेंगे, फिर रिपीट करता हूं, physics.vos@gmail.com बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे, शब्बा खैर, ध्यान रखिए, है ना, अपना, अपने माता पिता का, और अगली बार कुछ नए सवालों के आपके साथ मिलूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।